So let's begin with the discussion of FLT 11 mock at H2. Quant section, question number 1 on the screen, starting with a selection of questions. Question number 1, I guess something from time and work you could have attempted, part 1 में डाल दीजिए. Question number 2, skipping it for now, although this is something from number system which we have already done, but skipping it for now considering कि लाल कोटी पे नहीं हुआ है. Some of the students might not have solved the material and something like that. So skipping it for now. Question number 2 को आप part 2 में डाल दीजिए. Question number 3 cannot be something from number system, would have skipped it for now. Part 2 में डाल दीजिए. Question number 4 averages could have attempted, part 1 में डाल दीजिए. Question number 5 geometry, skip it for now, part 3 में डाल दीजिए. Question number 6 something from time and work, I guess, so you could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 7, very easy question, but skipping it for now, considering it to be from number system, part 2 में डाल दीजिए. Question number 8, I guess profit loss related, you could have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 9, so partnership, you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 10, geometry mensuration, could have skipped it for now, part 3 में डाल दीजिए. Question number 11, equations, again could have skipped it for now, part 2 में डाल दीजिए. Question number 12, profit loss, you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 13, alligation mixture, should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 14, geometry, coordinate geometry, could have skipped it for now, part 3 में डाल दीजिए. Question number 15, कल ही मेरे हिसाब से इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बट again considering it to be from number system, you could have skipped it for now, part 2 में डाल दीजिए. Question number 16, I guess something from percentages, could have attempted of allegation mixture, might possible, part 1 में डाल दीजिए. Question number 17, profit loss and ratio से related कुछ लग रहा है, should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 18, skipping it for now, number system से है, part 2 में डाल दीजिए. Question number 19, number of solutions है, मेरे हिसाब से skip it for now, part 2 में डाल दीजिए. Question number 20, log, skipping it for now, part 2 में डाल दीजिए. Question number 21, time speed distance, attempting it for now, you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Question number 22, something from SICI, you should have attempted it, part 1 में डाल दीजिए. Starting with सबसे पहले कौन सा है? First. Anyone having it out? Question number 1? Yes, sir. No. Let's check it out. When they work alone, B needs 20% more time than A does. A को let's assume 5x days लगते हैं, तो B को let's assume 6x days लगते हैं. They finish the job in 12 days in the following manner. A works alone for 25% of the job, then B works alone for 6 days, then finally B works alone to complete the remaining job 10% of the. ठीक है. या इधर से एक इंफॉर्मेशन मिला है मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट सा. A works till 24% of the job is done. A and B work together for 6 days. B work alone to complete the remaining 10%. इसका मतलब A और B ने मिला के कितना परसेंट काम किया? 66%. 66% In 6 days. 6 days. One day में कितना करते हैं? 11%. 11%. of the work is done in 1 day. Can I assume the total work to be 30. 30x? Yes, sir. They are doing 6 units and 5 units respectively on 1 day. Yes, sir. तो A plus B मिला के 11 यूनिट कर रहा है, which is 11%. तो 100% कितना होगा? 100 units. पूछा क्या है? How many days A alone can finish the job? Total work आप बोल रहे हो 100 units का है, which is 30x. तो x कितना हो गया? 30. 10 by 3. A को कितना टाइम लगता है? 5x. 50 by 3. Which is 16.67. 6.67. Get it? Yes, sir. Yes, sir. Wasn't a very difficult one. Would have been attempted. Anyways, clear है सबका? Shall we go ahead with the next one?
Yes, sir. Yes, Yes, sir. Shall I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Next, please. Fourth. बताने का है किसी को? No, sir. No, sir. No, sir. Yes, sir. No, sir. बता देना सर. Class 12th of XYZ International School has 3 sections KLM. In mathematics examination, the average marks obtained in these 3 sections were this respectively. The average marks of K and L is this. The ratio of number of students in L and M is this. What is the sir? Yes, sir. K का और L का. K का एवरेज मार्क्स कितना है? 72. L का कितना है? बोलने का है 60, 60. KL का मिला के कितना है? 69. 69. इसका मतलब मुझे ही रेशियो मिल गया KL का. Yes, sir. सॉरी 9 and 3. मतलब KL का रेशियो 3:1. 3:1. LM का रेशियो 6:7. फाइंड रेशियो निकाल लोगे? Yes, sir. 18:6:7. पूछा क्या है? अप्रोक्सीमेट एवरेज ऑफ द 3 सेक्शंस पुट टुगेदर. आप मान लो कि K में 18 बच्चे थे और उनके 72 मार्क्स आए थे एवरेज, प्लस L में 6 बच्चे थे उनके 60 मार्क्स आए थे एवरेज, और इसमें 7 स्टूडेंट्स थे उनके 50 मार्क्स आए थे एवरेज. ये जो सम है इसको डिवाइड कर देना 18 और 6 24 और 7 31 से. You'll get the answer. Yes, sir. समझ में आ गया? हाँ, sir. पक्का? Shall we go ahead? Yes, sir. Let's remove. हटा दो ना इसको. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट प्लीज. Sixth. बताने का है किसी को? Six. तो बता दो. बताना है. Yes, sir. Yes, sir. 3 friends, Raja, Ram, Mohan, have to complete a task. Initially, Raja and Ram start working on it. Raja types 4 pages per hour. Ram types 2 pages per hour. When 50% of the work was done, Mohan joins in. When the assignment was completed, 80% of the work was done by Raja and Mohan. Okay. Find the ratio of the work done by Raja and Mohan to that of Ram when only 80% of the assignments. देखो एक छोटा सा बात बताओ. राजा कैन टाइप 4 पेजेस पर आवर, राम कैन टाइप 2 पेजेस पर आवर. इससे मुझे क्या पता चल रहा है? Efficiency. Efficiency in the booking. क्या रिलेशन है दोनों की एफिशिएंसी में? Sir, 2:1. Ratio राजा 2. की एफिशिएंसी डबल है एज 1. कंपेयर. Yes, हाँ. sir. क्लियर है? Sir. Yes. Yes, Sir, sir. Raja Sorry? की कम हुई ना efficiency? राजा अगर 4 पेजेस टाइप कर रहा है, राम 2 कर रहा है, तो राजा की एफिशिएंसी ज्यादा हुई ना मैम. अच्छा, sorry, sir. हाँ. इट्स द नंबर ऑफ पेजेस पर आवर, नंबर ऑफ आवर्स नहीं है. हाँ, sir. चलो, ये आपका 100% वर्क था. 100 में से 50% वर्क राजा और राम ने मिलके किया. ठीक है, तो इसमें से राजा का कितना पोर्शन रहा होगा, राम का कितना पोर्शन रहा होगा, कोई बता सकता है? Sir, 2 by Sir, 3. 2/3 and 1/3. 2/3 and 1/3 और 1/2 करना मत भूलना. हाँ. तो ये 33.33% और ये 16.66%. हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. ये तो सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है. आगे जाते हैं. अब मोहन ने भी ज्वाइन कर लिया. When the assignment was completed, 80% of the work was done by Raja and Mohan. अगर राजा प्लस मोहन ने 80 किया तो राम ने कितना किया होगा? 20. 20. और अगर राम ने 20 किया तो राजा ने कितना किया होगा? 40. मतलब मोहन ने कितना किया होगा? 40. 40. यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अरे ये राजा का 40 कैसे आया? राम की एफिशिएंसी और राजा की एफिशिएंसी डबल थी, हाँ. तो राम 20% कर रहा है, राजा 40% करेगा. ठीक है. ये जो रिमेनिंग 50% था, इसमें से मोहन का 40% था, तो राजा का कितना होगा? 6.66 हाँ. और Yes, sir. राम का 3.33. हाँ, sir. इसका मतलब जब मोहन और राजा का रेशियो निकालता हूं, मोहन 40% करता है तो ये 6.66% ही करता है.
यस मतलब एफिशिएंसी रेशियो हो गया 6:1। हाँ क्लियर Yes, है? sir. अच्छा, यस सर अब मैं फाइनली लिख रहा हूँ राम, राजा, मोहन। राम का एफिशिएंसी 1 तो राजा का 2, और राजा का 2 तो मोहन का 12। यस हाँ, सर sir. लास्ट के 50% तक तो हो गया था, अगले 30% का ब्रेकअप करते हैं। 12:1 के रेशियो में कर दूं? हाँ इसका मतलब राम ने किया होगा 2 यूनिट, राजा ने किया होगा 4 यूनिट, मोहन ने किया होगा 24 यूनिट। यस सर। बट मेरे को तो हाँ, 80% sir. का ही निकालना है ना। इसीलिए तो सर 50 तो हो चुका, उसके बाद रिमेनिंग 30 और निकाल लिया। और अब इनको ऐड करोगे? हाँ, ठीक। तो फाइनली व्हेन 80% ऑफ द वर्क वाज कंप्लीटेड, राजा राजा 4 प्लस 33.33, 27। 37.33, हाँ। हाँ प्लस Yes, मोहन sir. 24 अपॉन राम 16.66 प्लस 2 18.66। अब इसको अगर फ्रैक्शन ले लेंगे तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 33.33 को 100/3 ले रहा हूँ, प्लस 4 प्लस 24 अपॉन 50/3 प्लस 2। एक बार एलसीएम लीजिएगा प्लीज। 24 4 28 28, 100, 184। एक मिनट। हाँ, sir. 56, 3 से 3 काट दूं, हाँ. 8 से हाँ कैंसिल करता हूँ, 7, 8 2 जा 16, बचा 23। हाँ, sir. समझ गया। सर आपने टोटल वर्क 60 अज्यूम किया था ना? टोटल वर्क वैसे कुछ लिया नहीं, बट ले सकते हैं, आपकी इच्छा हो तो आप 100 ले लीजिए, आपने 60 ले फिर ये लीजिए। 30 कहाँ से लिखा? मैम ये 30% है। देखिए 80% पे कंप्लीशन पे पूछा है, 50% का तो मुझे पता ही था। रिमेनिंग 30% और निकाल लूं? ओके सर, मैंने जैसे क्या किया था मेरे हिसाब से गलत है। जो 80% है मैंने डायरेक्टली एफिशिएंसी पे कर दिया था, मतलब 4 मैंने मोहन की एक्स मान ली एफिशिएंसी। तो 4+2+x का 80% इज इक्वल टू 4+2। गलत है। मोहन स्टार्टिंग से काम नहीं कर रहा है कि आप पूरे वर्क को एफिशिएंसी में डिवाइड कर। मोहन ने 50% के बाद में काम ज्वाइन किया है। ठीक है। समझ में आ गया? यस। सर ये आपने रेशियो के बाद क्या करा? 37.33 प्लस 24 वगैरह। इसको छोड़ दो सर। आपको ये समझ में आ गया था कि यहाँ तक? सर रेशियो तक आ गया था। ये आ गया था। हाँ। देखो 50% का तो अपने को डेटा यहाँ पे मिला हुआ ही है। यस। 80 के लिए अगले 30% में देख लूं, 1 to 12 के रेशियो में डिवाइड करूंगा तो 2 यूनिट, 4 यूनिट और 24 यूनिट आएगा, हाँ या ना? हाँ सर। राजा की टोटल यूनिट निकालते हैं, इसको तो 100/3 लिख दूं, हाँ। +4, ये 100/3 +4। मोहन की 24, ये +24 अपॉन राम की, इसको 50/3 लिख दूं, हाँ सर। +2। ओके सर। Shall I remove this? Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज। 8. बताने का है किसी को? यस सर। यस सर Yes, sir. ये तो इजी क्वेश्चन था। विमल, a candy shop owner purchases some candies at the rate of 25 per candy। पता नहीं कितनी कैंडीज खरीदी, कोई दिक्कत? नो सर। No, नहीं sir. We sell one candy at 4, second at 8, third at 12, and so on, so on, so on. Profit is 60%। dx। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए प्लीज। नो सर। नहीं No, sir. नो सर। Just allow me 1 second।
चलो यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत? No, No, sir. sir. तो नंबर ऑफ एसपी कैसे आएगा? पहले का 4 रुपए, दूसरे का 8 रुपए, तीसरे का 12 रुपए, अप टू एन एक्स। टर्म्स And terms. एपी है x/2 8, 2a प्लस x माइनस 1 d। 4. क्लियर है? हाँ, Yes, sir. yes, यस sir. सर से x काट दूं, हाँ, 40 को 2 ले जाऊं तो 80 इक्वल टू 8 80. प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 8x. 72। 72 अपॉन 4 18। तो x माइनस 1 इक्वल टू 18, x इक्वल टू 19। क्लियर है? Yes, sir. Anyone having a doubt can ask me, please. No, sir. No, सर sir. मैंने वो +4 कर करके और लॉस कैलकुलेट कर करके करा देखिए, था। इको बंद कर सकते हो क्या आपका? क्या सर? इको हो रहा है आपका साउंड? अब हो गूंज रहा रहा है, गूंज रहा है। है सर? अब थोड़ी हो रहा है। अब नहीं हो रहा, बोलिए। सर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कैलकुलेट करके करी थी कि 4 8 12 और उसमें लॉस लिख दिया था, फिर बाद में प्रॉफिट आया और जैसे ही इक्वल हो गया हाँ, तो फिर 19 आ गया था। तो वैसे सही है क्या? पर सही है। कैलकुलेटिव देखो बहुत थोड़ा था। लेंदी होगा, है हाँ ना? लेंदी होगा, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन अप्रोच सही है, अप्रोच में कोई गलती नहीं है। जैसे आई गिव यू एन एग्जांपल, कल भी एक क्वेश्चन था, नॉट श्योर क्या वैल्यूज थी यार, आई गेस 5 नहीं 4 7, कल वाले मॉक की बात कर रहा हूँ, 4 7 11 देन 17, ऐसी कोई एपी आई थी। एपी हाँ, मतलब sir. 17। हाँ सर। 21, 38. वन ऑफ द स्टूडेंट टोल्ड मी कि सर मैंने मैनुअली ऐड कर लिया, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट, कर सकते हो आप मैनुअली भी, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो। सर मैंने भी मैनुअली करा था। कौन बोल रहा है? वेदांत। हाँ, तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट इफ यू आर डूइंग इट मैनुअली। आंसर 100% श्योरिटी से आएगा। देखो अपने को दो क्लैरिटी थी, अपन कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। अगर अपन बहुत सारे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, लेट्स अज्यूम माय अटेम्प्ट्स आर गोइंग 10 प्लस, और मेरे पास टाइम कम पड़ रहा है, तो फिर मैं मैनुअल कैलकुलेशन में नहीं जाऊंगा। लेकिन इफ आई एम हैविंग सफिशिएंट टाइम विद मी, तो ट्रस्ट मी, आई विल गो फॉर मैनुअल कैलकुलेशन एज वेल, एंड यू वोंट बिलीव अपॉन दिस थिंग। मैंने लास्ट कैट 23 की बात कर रहा हूँ, कैट 23 में एक क्वेश्चन आया था जो मैं खुद भी मैनुअली कैलकुलेट करके आया, इसी टाइप का था, नॉट रिमेम्बर द एग्जैक्ट क्वेश्चन, बट मेरे पास टाइम था, मैंने उसको मैनुअली। इसका मतलब ये नहीं है मुझे अटेम्प्ट कम आते थे, मैंने अटेम्प्ट सही किए थे, लेकिन मेरे पास टाइम बच गया था, तो मैंने मैनुअली किया था। तो देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। हर टाइम पे अपने को जरूरी नहीं है फॉर्मूला स्ट्राइक कर जाए, कॉन्सेप्ट स्ट्राइक कर जाए कि क्या लग रहा है, पैटर्न स्ट्राइक कर जाए। जैसे कल वाला जो क्वेश्चन था, नीड नॉट नेसेसरी कि आपको स्ट्राइक करे कि यार क्या पैटर्न लग रहा है, तो आप मैनुअली कर सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। आपके पास कैलकुलेटर अवेलेबल है, 2 की जगह 3 3.5 4 मिनट 5 मिनट लग जाएगा, आंसर सही आएगा, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, +3 होगा एट द एंड ऑफ द डे, दैट इज। तो मेरे हिसाब से 4 मिनट में हो गया था। यस, ठीक है। यस सर। Yes, sir. Removing this, going ahead with the next one, please. Sir, 9. 9. बताने का है किसी को? No, sir. नहीं No, सर sir. Anyone? No, sir. नहीं। No, चलो, sir. Yes, sir. Next. एक बार बता दो प्लीज। एक बार बता देते हैं मैम। क्वेश्चन नंबर 9 का पेन गिरा, हाँ ठीक है। A and B enter into partnership and agree that a person is to receive 1400 per month as salary for managing the affairs of the business. A manage the business for 8 months, B manage for the remaining part of the year, gain 24,000, total profit at 24,000 का। इसमें से आपका सैलरी कितना चल जाएगा? Sir, 16,800. 1400 into 12, Yes, sir. रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? सॉरी, हाँ या ना? 7,200. Yes, sir. इसमें से ए को कितना मिलेगा? देखो 16,800 का 12 महीने का, ए ने 8 महीना मैनेज किया, 11,200 मिलेगा, और बी को Yes, sir. 5,600 मिलेगा। Yes, sir. इनका इन्वेस्टमेंट था 4:5 के रेशियो में, हम्म। मतलब इसको 3,200, इसको 4,000 मिलेगा। Yes, sir. इसको 4:5 में किया है ना इसको? सॉरी,
7200 को बाइफरकेट 4:5 में किया है ना? एग्जैक्टली मैम, डिफरेंस इन बिटवीन शेयर। ए को टोटल कितना मिला मेरे हिसाब से 14,400, राइट? हाँ हाँ बी को 9,600, डिफरेंस इज ऑफ 4,800। ओके सर। कोई डाउट है तो बोल दीजिए। नो एनीवन एल्स? नो सर। वो तो तो इसमें ये जो मैनेजिंग अफेयर्स के लिए जो भी अमाउंट होगा वो मतलब हमेशा प्रॉफिट में से डिडक्ट करके फिर बचे हुए प्रॉफिट को। एग्जैक्टली मैम, जो भी खर्चा होता है पहले खर्चा हटा दो, उसके बाद जो बचेगा वो प्रॉफिट डिवाइड होता है अमंग द पार्ट। ठीक है सर। चले आगे। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। 12 12th। बताना है किसी को? No, sir. नो सर। नो सर। नो सर। सर मेरा गलत आ रहा है, ये 40 आ रहा है, एक बार बता दो प्लीज। सही कर लो मैडम, गलत आ रहा है तो। सर पता नहीं ना सही कैसे कितना आ कर। रहा है सर मेरा 40 आ रहा है। मैम? 39 कर लो, सही हो जाएगा। सर A trader cheats both to its supply and customer by 20% due to faulty balance। इसका मतलब 100 की जगह 120 खरीद लेता है। हाँ और 100 की जगह 80 80। देता है। 80 का एसपी पता है तो 120 का निकालोगे। हाँ ठीक है। 100 में खरीदा, 150 में बेचा, प्रॉफिट कितना है मैम? अच्छा 40। 50 आ रहा है सर। चले आगे। हाँ Shall I remove this? ये नेक्स्ट प्लीज। 13 30। बताने का है किसी को? यस Yes, यस sir. सर। अब beaker contained V liters of mixture of milk and water in the ratio 3:2, increased by 60%, 3:2। चलो, मिल्क वाटर सोल्यूशन। मिल्क 3x ले लूं, यस सर। वाटर तो इसमें 2x? रिप्लेसमेंट लग जाएगा ना? यस सर। नहीं लगेगा। सर क्यों? मिक्सचर है तो नहीं लगेगा ना? हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द मिक्सचर इंक्रीज बाय 60%। 5 से कितना कर दूंगा? 8x 8x। बाय एडिंग वाटर ओनली, मतलब मिल्क तो 3 का 3 रहा, ये 5x हो हाँ गया। हाँ 38.4 लीटर ऑफ द सोल्यूशन वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर। 38.4 निकाला, किस रेशियो में निकलेगा? 3:5। 3:5। तो 38.4 को 3:5 के रेशियो में ब्रेक करेगा कोई? मेरे हिसाब से कितना बैठता है यार? सर 14.4 आएगा हाँ वाटर सर 14.4। और वाटर 24.1। और यहाँ पे प्लस 38.4 कर दूं हाँ प्लस 14.4। तो मिल्क हो गया इतना, वाटर हो गया इतना, और रेशियो हो गया इतना। हो जाएगा ये करके बताऊं? यस सर। करके यस बताऊं? सर। नहीं नहीं सर हो जाएगा। हाँ, तो सर जब सर मिक्सचर आता है तो रिप्लेसमेंट नहीं लगा सकते? एक ही नहीं वैसे में दो चीजें हैं तो। नहीं। और वैसे भी मिक्स रिप्लेसमेंट लगाना नहीं लगाना बहुत सेकेंडरी है भाई, इसमें तो आप समझ नहीं रहे। पहले ऐड करना है, 60% इंक्रीज करना है, उसके बाद कहीं रिप्लेसमेंट लगेगा। राइट राइट हाँ सर। सर इसमें जैसे आपने 3x 2x अज्यूम किया है ना, हाँ, सर इसमें दे रखा है कि v लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर है, तो सर अपन इसको 3/5v और 2/5v नहीं ले सकते, या वो लेना कंपलसरी है क्या? ले सकते हैं मैम, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको मजा आ रहा है तो कर लीजिए। तो सर फिर इसमें v का कोई मतलब सेंस नहीं ना, अपन ने 5x 3x 2x से भी कर लिया तो सही है ना फिर? नॉट एट ऑल। ओके। चले आगे।
Yes, sir. Yes, sir. Shall I remove this? Yes, sir. Yes, sir. Next, please. 16. बताने का है किसी को? Yes, sir. No, sir. Petrol of prices of petrol and diesel are increased by 40%. For limiting the increase in the expenditure of petrol to 12%, a person starts mixing diesel in it. If before the increase of the price, the cost of diesel was 60% the cost of petrol. अबे ये क्या दिक्कत है? अभी बात करते हैं पेट्रोल की क्या है कॉस्ट 100, 100 ले लो, sir. 100. और डीजल की 60. 100. 60, 60. 60 ले लो. Sorry, 60. पेट्रोल की न्यू प्राइस कितनी हो गई? 140. 140. 84. 84. पेट्रोल की प्राइसेस और दोनों की इंक्रीज हो गई 84। और आप मिक्सचर की प्राइस कितना चाहते हो? 112. 112. तो दिक्कत सर ये No, sir. 112 कैसे, मतलब समझी नहीं. दे रखा है ना मैडम। लिमिटिंग द इंक्रीज इन द एक्सपेंडिचर ऑफ पेट्रोल टू 12%, 100 से 112 तक ही ले जा सकता हूँ। तो पहले एक्सपेंडिचर 100 का था. नहीं, पहले पेट्रोल 100 का, हाँ. अब क्या हुआ, पेट्रोल 140 का हो गया, तो मैं हम्म. क्या कर रहा हूँ, उसमें डीजल मिक्स कर रहा हूँ ताकि मेरा इफेक्टिव कॉस्ट रिड्यूस हो जाए हम्म. और 112 पे आके रुक जाए। सर बट 100 एक्सपेंडिचर थोड़ी ना था. मैं तो 1 लीटर पेट्रोल ही खरीद सकता हूँ मैम। सॉरी. मेरे पास 1 लीटर पेट्रोल खरीदने का ही पैसा है। अच्छा. ओके सर, ठीक है. तो मेरे पास पहले 100 रुपए थे, अभी 112 रुपए है। तो मैं क्या करूंगा, आधा लीटर पेट्रोल खरीदूंगा 70 का आएगा, आधा लीटर ये खरीदूंगा 42 का आएगा और 112 का बैठ जाएगा। ठीक है. ओके सर. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. यस सर. Shall we go ahead with the next one? Yes, Yes, sir. sir. 17. 17 बताने का है किसी को? No, नो sir. सर. No, sir. No. No, sir. और यस सर। यस, यस सर। सर एक बार वो एलिगेशन से करा था बस one। अभी देख लेते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। टू डिफरेंट वेराइटीज एट 20 पर केजी 50 पर केजी, मिक्सेस देम इन द रेशियो 3:2, 50 पर बेचा, प्रॉफिट बताना है। देखिए सर, जब भी रेशियो दे रखा हो और एवरेज प्राइस निकालना हो तो मिक्सचर मैंने बताया कि नहीं लगाने का। आप तो एक काम करो, 20 रुपए वाले का 3 किलो ले लो, 50 रुपए वाले का 2 किलो ले लो, कितना हो गया? 160. सर 160। और बेचा आपने 50 रुपए किलो के हिसाब से 5 किलो, कितना हो गया? 250. So there is a profit of 90 on 160, यस सर। 56.25 आएगा सर। ओके सर। चले आगे? Yes, sir. यस सर. नेक्स्ट प्लीज। 21. 21. बताने का है किसी को? Yes, sir. Yes, No, sir. The distance from A to B is 360 kilometers. Aman and Suraj start from A at the same time and move towards B. Aman takes 6 hours more than Suraj to reach B. ठीक है? Moreover, Aman reached the midpoint of A and B 3 hours before Suraj reaches B. ठीक है? अमन की स्पीड कितनी है? X. सूरज की? Y. Y. पहली बात, जब अमन 360 ट्रेवल करेगा तो उसको सूरज Y. से 6 घंटा ज्यादा लगेगा। यस सर. जब अमन 180 ट्रेवल 180. करेगा हाँ. तो उसको 3 घंटे. सूरज के टाइम से 3 घंटा कम लगेगा। कम लग. सर इक्वेशन यही बनाई थी बट आंसर गलत आया था. मैडम कुछ नहीं करने का है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देने का है, ये कट जाएगा।
540 upon, sorry, 180 upon x equal to 9, x equal to 20. ओके सर। चले आगे। हाँ सर। क्यों ज्यादा दिमाग लगाने का मैडम? सॉरी सर। It's okay, ma'am. You should be sorry for this. Shall I remove this? Yes, sir. यस सर। Next, please. 22। बताने का है किसी को? No, sir. नो No, सर। sir. Anyone नो of you सर। बताएगा कोई कैसे किया? सर D3/D2 -3। Okay. Anyone else? तो मैंने सर तो फॉर्मूले से डिफरेंस का फॉर्मूला लगा दिया 2 ईयर 3 हाँ ईयर जो फिर मैंने डिवाइड कर दिया। यार ऐसे नालायक बच्चे हो ना, तुमको लिखवाया हुआ है जब भी डिफरेंस दे रखा हो 2 साल का, -3 करने का है। 6/20 120 आता है, 1/5 होता है, 1/20 होता है, 5% आंसर आता है। पता नहीं क्या करते रहते हो तुम तो। मेरे नोट खोल के देख तो लो एक बार, ज्ञान लिखवाया है उसमें बहुत। Yes, sir. सॉरी सर। बताया था शॉर्ट ट्रिक। हाँ हाँ यस सर। तो फिर एग्जाम में याद दिलाने भी आ जाऊंगा एक बार। मैं नो लगाई सर। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम सर। अरे दीक्षा को बोल रहा हूँ। यार मैं लगाई थी सर। अरे उसने मेरे को मैसेज किया कि वो मेरे नोट्स देखती है। अच्छा वो तो अच्छा वो ठीक है सर। हाँ बट सर मेरे स्टिल को फॉर याद योर था। काइंड इंफॉर्मेशन मैडम, देखना नहीं होता है, समझना भी होता है। सर समझना होता है तभी तो ये आंसर मेरा अरे सही गया। आपने तो मैम मेरे को कल ही बता दिया था इसका आंसर। यू हाँ इंटेलिजेंट इनफ। यस सर। नॉट द मोस्ट इंटेलिजेंट वन। सर नहीं नहीं हूँ मैं इंटेलिजेंट। सर आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई नहीं है। अरे मैं मोस्ट इंटेलिजेंट वन में खुद को काउंट नहीं करता हूँ मैम। सर अभी जो है इस मीटिंग में। अच्छा, इसको लग रहा है इस मीटिंग में इसके अलावा मेरे से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट मैं ही हूँ। तो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दिस, बट यस, सही हो सकता है। चलो गोइंग अहेड, नेक्स्ट प्लीज। चल आई रिमूव दिस? हाँ यस सर। सर। यस नेक्स्ट सर। प्लीज। सेकंड। किसी को बताने का है? नो नो सर। सर। नो सर। सर नंबर सिस्टम है ना। हाँ, यस सर मेरे को बता दो एक बार। सही में। सेकंड क्वेश्चन। सही में। अबे हाँ बोलो ना। यस सर। अरे मैडम आपने थोड़ी बोला था पहले। बट सर मेरे को भी पूछना है। लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आ, चलो, कोई बता पाएगा या फिर मैं बता दूं डायरेक्टली? केवल ये बोलना यस मैं बता एक सकता हूँ या रिपीट हो बता गया सकती हूँ, सोल्यूशन नहीं बोलने का है। तो बता सकते हैं। यस सर। एक और एक दो जने बताइए, एनी वन ऑफ। सर 60 कि आपका साइक्लिसिटी नोटिस करेंगे तो आपके 4 और 6 का आपके पास में साइक्लिसिटी होती है। एंड कंसिडरिंग की 64 फैक्टोरियल तो आप सिर्फ 64 पे फोकस करेंगे और वो आपका इवन नंबर है। साइक्लिसिटी में आपका 6 आएगा, राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट। यू मीन टू से इट इज 84 का यूनिट डिजिट 4, उसमें इवन पावर है, दैट्स व्हाई द आंसर इज 6, राइट? यस सर। एनीवन एल्स? सर अपना जो यूनिट डिजिट होता फॉरगेट है अबाउट मेरे दैट को। चारुल। वंशिका का आंसर सही है, सोल्यूशन एक्सप्लेनेशन। सर उन्होंने मुझे बताया था आपने ऐसा ही क्लास में बताया था तो अरे सही वो है। छोड़ने का, वंशिका का आंसर सही है या गलत है, एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है? सर आंसर तो आ रहे हैं मतलब। अरे एक्सप्लेनेशन सही है या गलत है? सर मेरे वाले से अलग है तो। उसका सही है या गलत है, जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो ना। हाँ वो जो बताया वो तो सही है। सही है तो फिर आपका अलग है। चलो बताइए, आपका ही बताइए। सर मैंने तो ऐसे करा कि जो यूनिट डिजिट होती है अपनी 3 होती है। यूनिट डिजिट 3 होती है? फैक्टोरियल के केस में। नहीं नहीं रुको। मैम 3 होगी तो आंसर सर ऑड क्या आएगा, इवन आएगा? 3 क्या होती है सॉरी सर वो। आप 3 के आगे एक उल्टा 3 लिख दीजिए। 8 बोलने की कोशिश कर रहे होंगे आप शायद। देखिए ऐसे एक 3 बनता है, एक उल्टा 3 120। बनता है। हाँ भाई इनटू करके आएगा ना जो यूनिट वाले हैं। नहीं, आप क्या बोल रहे हो, यूनिट डिजिट 8 होगी ऐसा?
नहीं सर, 24 into 6 into 2 into 1 जो भी आएगी। आप बोल रहे हो 24 into 6 into 2 into 1 गलत है। गलत नहीं है सर, मेरा भी 6 ही आया है। आंसर सही है। देखिए, सॉरी टू से दिस थिंग बट वंशिका आपका एक्सप्लेनेशन एकदम गलत था। आई टेल यू द रीजन फॉर दैट। ओके सर। मैम आप बोल रहे हो 84 फैक्टोरियल का हम्म यूनिट डिजिट। हम्म मैम 84 फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट या फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट? सर 8 ही आ रहा है, अच्छा, 8 ही नॉन आ जीरो रहा है। डिजिट, यस सर, नॉन जीरो डिजिट बोलना था। नॉन जीरो डिजिट वो भी 4 नहीं होगा। हम्म वो भी 4 नहीं होगा। ओके सर। क्यों नहीं होगा बता सकते हैं? मैं वही सोच रही हूँ। मैम बिकॉज 84 फैक्टोरियल इट्स नॉट ओनली 84 मल्टीप्लाइड बाय 83 भी होता है। तो हाँ 83 इंटू 84 का यूनिट डिजिट तो 2 बन गया। सर, तो आगे में 82 81 80 सारे तो नंबर आएंगे। हाँ। इज इट लाइक दैट यू आर पिकिंग अप डायरेक्टली बिकॉज इट्स 4 ओवर हियर? नो सर। हैव यू सॉल्व्ड इट? सर तब तो किया था, अभी मिल नहीं रहा है। यार आई एम नॉट श्योर मतलब सर 84 फैक्टोरियल का फर्स्ट नॉन सर जीरो डाला जा सकता है। यस मैम सर प्लीज। यस मैम। इवन होगा ना जो भी होगा। बस इवन होगा। आई डोंट फील लाइक 84 फैक्टोरियल का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कैलकुलेट करना बहुत इजी सा टास्क है। सर पर वो ओके तो सर। 8 ही आएगा ना हमेशा, मतलब। पता नहीं, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट। 8 कैसे आ रहा है बताइए? सर क्योंकि इसके बाद तो 120 चला जाएगा। 120 चला जाए? मतलब 24 6 2 1 ही होता है, फिर उसके बाद तो 120 चला जाता है ना। हम्म, हम्म, मैम 120 में भी नॉन जीरो डिजिट का फर्क पड़ेगा। वी आर नॉट गेटिंग इट। आप बोल रहे हो 8 5 फैक्टोरियल हाँ 120 होता है ना? हाँ। और आपने बोला 1 into 2 into 6 into 4। अच्छा हाँ दिस सर। इज 24 2 जा 48 यूनिट डिजिट इज 8। फिर ये 2 कैसे बन गया फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट? और अगर यस ऐसा सर। था तो 6 फैक्टोरियल में जाके ये वापस से 2 ही क्यों रहा, और 7 फैक्टोरियल में जाके ये 5040 में 4 क्यों बन गया? हाँ हाँ हाँ, आ गेटिंग है? गया आ गया। यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियरिटी जरूरी है। गलत है आपका कॉन्सेप्ट, समझ में आया? यस सर। ठीक है, वंशिका क्लियर है? यस सर। दीक्षा आप क्या बोल रहे थे? सर मैं ऐसे कह रही थी जो नॉन जीरो डिजिट है वो इवन ही होगा ना इनमें से नॉन टू जीरो फोर डिजिट सिक्स इवन होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कुछ भी हो लेकिन नॉन जीरो डिजिट इवन होगा। यस सर। और जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? सर नॉन जीरो बोला है ना। सर नॉन जीरो नॉन बोल रहे जीरो हैं ना, फिर बोला है। जीरो कैसे आएगा? सो इट कैन बी 2468। हाँ हाँ। यस सर। कोई सा भी नंबर लो 2468 और इसकी पावर 4 का मल्टीपल करो, रिजल्ट हमेशा 6 ही आता ओके। है। चेक करके देख लीजिए। सर अपन ने पर टू फोर यस सिक्स एट के सर। पावर 4 क्यों किया बताते है? हैं मैडम, आपको भी बताते हैं। अभी क्लियर है सबका? यस 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 सर। 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 चलो गोइंग अहेड। दिया आप बोल रहे हैं पावर 4 का मल्टीपल क्यों किया? हाँ, और सर अपन ने 2468 भी क्यों किया है? वो छोड़ने का, पहले 4 के मल्टीपल पे आता है। 64 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल होता है क्या? हाँ। 63 फैक्टोरियल 4 का मल्टीपल होता है क्या? नहीं। एग्जैक्ट यस सर। में आया। हाँ। यस सर सर। मैडम 63 फैक्टोरियल 62 फैक्टोरियल 61 फैक्टोरियल सब 4 के मल्टीपल हैं। व्हाट इज 63 फैक्टोरियल? 1 into 2 into 3 into 4 अच्छा into up to हाँ। 63। हाँ सॉरी सर भी समझ सर। में बैठा? हाँ तो ये पावर हमेशा 4 का मल्टीपल होगी, हाँ या ना? 63 हाँ। लिखूंगा तो भी। अब ये 2468 क्यों है? 84 फैक्टोरियल का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमेशा इवन होगा। क्लियर है? ठीक है सर। यस सर। चले आगे। यस। यस ये समझ सर। में आ गया तो ये बता दो 83 फैक्टोरियल का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इवन होगा ऑड होगा? 83 इवन होगा सर। फैक्टोरियल का। इसका इवन होगा सर। होगा सर। इवन होगा समझ में सर। आ गया? हाँ। हाँ। सर हटा पर दूं? एक सेकेंड सर, यस ये मैम। 2468 तो मुझे समझ आ गया, मतलब कोई इन चारों में से कोई सा भी एक आएगा हाँ इवन नंबर। और 4 का मल्टीपल है 64, वो भी समझ आ गया। उसके बाद सर आपने 6 कैसे निकाला कि 6 ही होगा? मैडम, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे की चीज जादू है।
बता दो। बता दिया। 2 की पावर 4 यूनिट डिजिट बताओ। 2 की पावर 4 6। 4 की पावर 4 यूनिट डिजिट बताओ। 4 की पावर Six. 6 6 की पावर 4 यूनिट डिजिट बताओ। 6 8 की पावर 4 यूनिट डिजिट बताओ। 6। आंसर। 6 गॉट इट सर। सर यस मैम। इनकी हमेशा, अब जैसे आपने 83 फैक्टोरियल बोला, तो इनकी हमेशा सब नॉन जीरो डिजिट जो होगी वो इवन ही होगी क्या फिर? यस मैम। उसका रीजन क्या है वो भी बता दो। 1 तक तो ठीक था, हाँ जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया इवन हाँ बन गया। हाँ अभी इवन और रूल्स बताए थे कि अगर एक नंबर भी इवन है तो आप हाँ, किसी से भी मल्टीप्लाई करते रहिए, रिजल्ट हमेशा इवन ही आएगा। इवन ही आएगा हाँ। आगे मैम, हाँ क्या बस इतना ही है। इसीलिए ठीक है सर। हटा दूं? Yes, हाँ sure. Shall I remove this? यस सर। यस Next सर। please. Third question. बताने का है किसी को? Yes. ये यस फिबोनाची सर। मैंने लास्ट यस क्लास में सर। डिस्कस किया था, इनकेस इफ यू हाँ। रिमेम्बर। Yes. हाँ सर। फिर भी बताने का। Yes, sir. तो वैसे ही किया था वैसे पर हुआ नहीं, मतलब वैसे किया था फिर अटक गया, डेटा आंसर नहीं आ रहा था। समझ में आया कई क्वेश्चन क्यों छुड़वा देता हूँ? तुम लोगों को फिर लगने लग जाएगा फिबोनाची तो मेरे को आती है, अटेम्प्ट करते हैं 4 मिनट लगा दिए, फिर समझ में आया फिबोनाची तो आती नहीं है। A series in which any term is equal to the sum of the preceding two terms is known as a Fibonacci series. Usually the first two terms are given initially and together they determine the entire series. Now it is known that the difference of the squares of the ninth and the eighth term of a Fibonacci series is 840. You have to find the 12th term. बराबर? Yes, sir. यस सर। पहला टर्म x ले लो, एक्स। यस दूसरा सर। Y. वाई। तीसरा, X X plus plus 1. Y. चौथा, एक्स Y प्लस of टू X वाई। plus Y. पांचवा, 2x+3y। छठा, 3x+5y। सातवां। तो पीछे के सर सारे ये 5x 3x + प्लस 8y। थ्री वाई नहीं होगा? यस एक्स सर। प्लस एक थ्री एक वाई करके की बोलिए, जगह। सो सॉरी, एक एक करके बोलिए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। सर ये जो आपने फिफ्थ टर्म लिखी है वो 3x + 4y नहीं होगी? हाँ तो इनफैक्ट फोर्थ टर्म भी तो 2x + 2y होगी। यस पिछले सर। दो ऐड कर रहे हैं यार ना मेरे को नहीं पता है, दीक्षा जो बोल रही थी मैं लिखे जा रहा था। सर, पर पिछले दो अरे ऐड कर दीक्षा रहे ने हैं ना अभी तो बोला ही था कि हाँ, इसको तीन। लिखना है पिछले कि दो इसके नहीं, अलावा सारे कुछ नहीं। ऐड करते हैं ना सर। हाँ सर। तो दीक्षा मैंने कब बोला कि गलत है? Diksha is ओनली correct. प्रीसीडिंग टू टर्म्स स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। ओके सर, कि इसमें क्वेश्चन में स्पेसिफिक लिखा हुआ है या फिर फिबोनाची में प्रीसीडिंग टू फिबोनाची टर्म्स? होती ही है, लेकिन ऐसी कोई भी नई सीरीज होगी ना जो आप लोगों को नोन नहीं होगी, तो उसकी डेफिनेशन क्वेश्चन में दे रखी होगी 100% श्योर। ओके सर। ओके सर। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। चले आगे। यस सर। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6। हाँ कौन होता है? दीक्षा नेक्स्ट। तो 5x + 8y। इन लोगों को मैडम विश्वास नहीं है वैसे आप पे। देख लिया सर मैंने। यही है। नेक्स्ट। 8x + 13y। और एक लास्ट और बता दो। सर 13x + 21y। ये 9 टर्म तक मैंने लिख लिया। बोला क्या है? डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 9th एंड 8th टर्म इज 840। ये क्या बकवास है? ये कैसे करेंगे? A9 + A8 को मेरे हिसाब से A10 लिखा जा सकता है। A9 - A8 को A7 लिखा जा सकता है। इसके बाद क्या? ओ, चलो करके देखते हैं। दीक्षा एक नेक्स्ट टर्म बता देंगे प्लीज? सर Sir, 21। A9 minus A8 को ये 34y। 7 वाला समझ में नहीं आया. सॉरी, A9 minus A8 को ये 7 वाला समझ में नहीं आया. मैंने समझाया नहीं अभी तक सर आपको।
मैं तो कर लूँ एक बार। ओके। यस सर। चलो देखते हैं। देखिए, नॉट सो श्योर इट्स द करेक्ट वे। इट इज वन ऑफ द वेज, बट ठीक है, बट देख लेते करना क्या। ए नाइन स्क्वायर माइनस ए एट स्क्वायर को ए नाइन माइनस एट, ए एट नाइन प्लस ए एट लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ए नाइन प्लस ए, A10। समझ में आ गया। हाँ हाँ। सर। प्लस ए नाइन माइनस ए, A7। A7। ये समझ में आ गया। यस सर। यस सर। सर आपको समझ में आ गया क्या? नो सर, सर जिनको समझ में आएगा उनसे पूछो एक बार कैसे है। कौन बताएगा? चारुल। सर A9 ए प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में लिख दिया इसको अपन नहीं, ने। ए नाइन माइनस एट ए सेवन कैसे आया, और ए नाइन अच्छा प्लस एट ए टेन कैसे? सर A9 इक्वल्स टू A8 प्लस A7 था, तो उसमें से A8 माइनस कर दिया तो A7 बचा, और A9 प्लस A8 10 होगा क्योंकि वो उसकी प्रीसीडिंग दो टर्म्स का सम हो गया। सर आपको समझ में आ गया क्या? अब आ गया सर। तो भाई नेक्स्ट डाउट सेशन चारुल तुम ही ले लो। सर ठीक है, चलो लेट्स गो अहेड। देखिए, मेरे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दो इक्वेशन है। 5x प्लस 8y, 21x प्लस 34y। अगेन सेइंग कि आई एम नॉट श्योर ये सही तरीका है या नहीं, हो सकता है इससे बेटर कोई तरीका हो, बट एज ऑफ नाउ फॉर दिस आई पिक अप द वैल्यूज। तो आई कैन नॉट टेक 840, बिकॉज देखो सिंपल सी बात है, मुझे एक क्लैरिटी तो है कि यार एक्स और वाई वन से बड़े होंगे, अदरवाइज मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा कभी। यस सर। ठीक है, यस कैन आई रिमूव दिस? हाँ जी। कैन आई यस रिमूव सर। दिस? 5x प्लस 8y को 2 लिख सकता हूँ क्या? नो सर। 3 नो लिख सर। सकता हूँ? नहीं। 4, नहीं। 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 5। भी नहीं। सर एक्स और वाई दोनों को हम लोग वन से ग्रेटर ही अज्यूम कर रहे हैं ना। x अगर 1 से बड़ा होगा ना, तो y तो x से बड़ा ही हो। हाँ हाँ प्लीज, ठीक है सर। 6 भी कैंसिल, 7 भी, 8 भी, 10 भी, 12 भी। कौन सा बैठ पा रहा है, कोई बताएगा? क्योंकि दिखता है शायद। सर सर इसमें 20। इंटीग्रल लेना जरूरी है क्या? सॉरी, इंटीग्रल 20। वैल्यू जरूरी है क्या? एक एक मिनट का टाइम दीजिए।
तो सॉरी फॉर द डिले। क्या चल रहा था यार? अच्छा ये चल रहा था कुछ। लेट्स कंटिन्यू। मैं एक बार वापस से देख लेता हूँ, मैं भूल गया था। आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो कंटिन्यू करते हैं। सीरीज, अच्छा फिबोनाची सीरीज का क्वेश्चन था। फर्स्ट टू टर्म्स आर this and the difference of squares of 8th and 9th term is given to as 840। ठीक है, ठीक है। अपन ने क्या किया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टर्म लिख लिया था। लेट मी ट्राई अगेन। अपने को दे रखा है a9 स्क्वायर माइनस a8 स्क्वायर इक्वल्स टू a9 माइनस a8 a9 प्लस a8, राइट? यहां तक अपन a7 इंटू a10 तक पहुंच गए थे। Yes, sir. उसके बाद ओके फाइन यार, एक छोटा सा मिस्टेक जो अपन कर रहे हैं ना, तो ये है। एक छोटी सी बात बताओ। कल ही मैंने किसी को तो बताया था, आई एम नॉट श्योर, इवन क्लास में भी कल शायद ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ था। अगर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आप ले लो 50। सर आपने मुझे बताया था, मैंने पूछा था आपसे। हाँ, याद आ गया मैं। हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब इज क्या इक्वल होगा, टू इसको 38। एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई लिखते हैं, हम्म। इक्वल टू 1 इंटू 50, 2 यस इंटू सर, 2 इंटू 25 25 और 5 इंटू 10। 10। बस तीन ही केस बन गए। कौन सा राइट। विजिबल है? सर फर्स्ट तो नहीं है। फर्स्ट नहीं है। सेकंड? सर सेकंड भी नहीं है। नहीं है और सर, ये भी नहीं है। कैसे देख के बता रहे हैं? सर क्योंकि यहाँ तो हमको इन दो वैल्यूज को उसमें प्लस और माइनस करके लिखना है ना, आपसे वो हाँ, नहीं है ना। और जब मैंने बताया था फॉर अदर्स एज वेल, मैंने बताया था कि अगर 50 और 1 को ऐड करेंगे तो इवन आना चाहिए हमेशा, बिकॉज यहाँ पे जब लेफ्ट हैंड साइड को आप ऐड करेंगे तो एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई कट के 2x देगा। Yes, sir. बताया था? Yes, sir. ये Yes, सबको sir. पता है पहले से, हाँ किसको नहीं सर। पता? पता है सर। चलो लेट्स ट्राई टू फिगर इट आउट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ए प्लस बी ए माइनस बी बन गया। Yes, sir. ऐड करके कितना आना चाहिए? इवन। 1 प्लस 840, हाँ या ना? No, sir. 2 420, Yes. 3 280, Mm. 4 210, Yes. 5 168, No. 6 140, Yes. 7 120, No. 8 105, No. 10 84, Yes. 10 84, 12 70, Yes. 14 60, Yes. 15 56, No. 20 42, Yes. 21, no. 21 40, No. 24 35, No. 28 30। Yes. Yes, sir. ठीक है, एक बार प्लीज चेक कर लेंगे मैं कुछ मिस कर रहा हूँ क्या। 840 के एक बार फैक्टर्स निकाल के बताएंगे जल्दी से। 840 होता है 8 105। सही है क्या? Yes, sir. फैक्टर्स कितने आ रहे हैं? 32. 32। तो 16 हाँ। वेज होंगे एक्सप्रेस करने के एज अ प्रोडक्ट। Yes, sir. 1 2 Yes, 3 sir. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, सारे 16 आ गए। चलो देखें आगे। Yes, sir. यार एक बात बताओ, A9 प्लस A8 अगर 420 है और A9 माइनस A8 अगर 2 है, तो A9 का वैल्यू क्या होगा और A8 का वैल्यू क्या होगा? 211 A9 होगा। हाँ. सॉरी, 211 211 A9 होगा. A9 होगा। और
और 209 8 होगा। 209। हाँ 209 यस सर। सॉरी हाँ फिर से A9 और A8 पता चल गया। हाँ आप एक बात बता सकते हैं A7 कितना होगा? सर ये टू तो 2 ही हो टू गया। पाएगा। A7 2 हो गया। हाँ हाँ और A6 तो मेरे हिसाब से शायद नेगेटिव चला गया आपको हाँ हाँ यस सर। सर। ना? हम्म ठीक है। So I guess this can be not the possible answer. This cannot be the possible answer, right? यस सर। I'll go ahead with the next one. 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 I'll check all them. ये एक feasible केस बैठ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि इतने सारे केसेस में सॉल्व करूंगा क्या? यार देखो, तरीका मेरे हिसाब से यही बैठ रहा है कि इतना सब कुछ सॉल्व कर लो। हम्म, लेकिन दैट इज नॉट फीजिबल। मतलब अप्रोच मेरे हिसाब से यही होनी चाहिए। क्लियर है? यस अब किसी को करने की इच्छा है तो प्लीज एक बार करके देख लेना। डोंट फील लाइक कि सॉल्व हो पाएगा इस बार। और एक छोटा सा चीज जो अपन ने स्टार्टिंग में मिस कर दिया मेरे हिसाब से, विच वी शुड हैव फोकस्ड अपॉन, इज कि वन ऑफ द ऑप्शंस अवेलेबल इज डेटा इनएडिक्वेट। आइडियली वी आर हैविंग this equation where we are having two variables and only one equation is available. तो अगर मुझे करना ही पड़ा and it's purely a bluff, लेकिन अगर करना पड़ा तो I'll go with data inadequate, but it's purely a bluff. Otherwise I would have skipped it because इसको करके देखने में मेरे को भी कम से कम 4 से 5 मिनट तो मिनिमम लगेगा. Not worth enough to pay this much amount of time to a single question. Is that clear, everyone? यस यस सर यस सर। यस सर चलो fine. Let's go ahead. Shall I remove this? यस सर यस सर। यस सर। Next, please. 7th 7 बताने का है किसी को? यस सर। हाँ सर बता दो एक यस बार। सर। यस सर। तो नहीं पूछ रहा हो किसका गया? मतलब किसी का हुआ है ये? सर क्या हाँ जी, सर? ये हो गया आपका? हाँ जी मैम अप्रोच बताइए प्लीज। सर 24 के फैक्टर्स निकाले थे। ओके, कर लिया। नहीं सॉरी 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 इफ सर 24 मेरा भी हो गया था ये। डिस्टिंक्ट नंबर्स। आपसे भी पूछ लेते हैं। सर 24 को लिखने के आपके पास में मतलब एज इन 2 into 2 into 2 ऐसे कि आपके फैक्टर्स निकाले थे, ठीक तो है। उसके अकॉर्डिंगली 2 into 2 into 3 2 times 3 था एंड 3 times सॉरी 1 time 3 था 8 into 24। 2 into 2 into 2 into 3 था। यस सर 2 3 times 3 1 time। यस सर। यस मैम। तो उसके थ्रू क्लियर मतलब उसके थ्रू समझ में आ रहा है कि जो है वो आपके 4 होंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैंने 4 मार्क किया था। अच्छा, चारों आपकी अप्रोच क्या थी? सर यही थी 2537 ले सकती हूँ मैं, मतलब कि 2 into 2 into 2 into 3 है ना। एनीवन एल्स? सो मैंने अभी किया, टेस्ट में नहीं किया था। हाँ तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए 4 into 2। हाँ। एंड सर डिस्टिंक्ट पूछे हैं तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइड बाय फैक्टर्स 2। एक सेकंड, सो सॉरी। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स आप 24 के निकाल रहे हैं, राइट? हाँ 24 के। नहीं, द क्वेश्चन इज अ नंबर हैज 24 फैक्टर्स, द नंबर इज नॉट 24। ओह सॉरी आई रेड इट रॉन्ग। हाँ हाँ सर। ठीक है, चलो गोइंग अहेड। अच्छा, in case if I'll ask you the minimum number of distinct prime factors in the same case, anyone? सर प्राइम सर फैक्टराइजेशन है ना। Minimum number of prime factors, distinct prime factors it can have. सर 2 हो सकता है क्या? सर से फेक होगा तब तो। 1 होगा ना मैम? समझाता हूँ, अच्छा दोनों चीजें।
सुनिए, अ, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स बताएगा कोई? एनीवन? 24। 24। समझ में आया कैसे? 24। यस सर। क्या करते हैं? सर टू को अपन 2 की पावर 3 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 0 टू 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 3 2 की पावर 3। मतलब 4 ऑप्शन है हाँ एंड और इधर 6 सिमिलर ऑप्शन है। एंड उधर 6 तो 6 मतलब हो हर जाता पावर में +1 करके मल्टीप्लाई करना होता है, लॉजिक। राइट राइट राइट। यस सर। यू आर गेटिंग 24 फैक्टर्स फॉर अ नंबर. अब यू कैन गेट इट एज 1 into 24, हाँ 2 into 12, यस सर। 3 into something, 4 into something. ये सारे केसेस बराबर हैं। लेकिन 8 आप to 8। इसको 2 into 4 into 3 भी तो लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैं ये केस कंसिडर कर रहा हूँ ना, या फिर 2 into 12 कंसिडर कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से a की पावर 1 b की पावर 11 होगा, तब इसका 2 into 12 बैठ रहा होगा 24। यस सर। हाँ सर। यस यस सर। सर। मतलब दो प्राइम फैक्टर मिले, a और b। हाँ जैसे मैंने इसको 3 का ब्रेकअप दिया, मेरे को लगा a की पावर 1, b की पावर 3, c की पावर 2, इससे 24 बैठ रहा होगा शायद। हाँ सर। लेकिन यस मेरे सर। प्राइम फैक्टर्स इंक्रीज हो गए 3 में। तो मैं क्या चाहता हूँ, 24 को ब्रेक करूं एज इन द मैक्सिमम पॉसिबल पार्ट्स। तो आई विल राइट इट एज 2 into 2 into 2 into 3। इससे ज्यादा ब्रेकअप नहीं हो सकता, क्योंकि ये 4 को फर्दर 2 2 में ब्रेक कर देगा। यस सर। मतलब द नंबर वुड हैव बीन a पावर 1, b पावर 1, c पावर 1, d पावर 2। इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बताएगा कोई? तो सर इसको 2³ into 3 नहीं कंसिडर, अच्छा सॉरी। मैडम 2 क्यूब हाँ नहीं, सर मैं सर वो वही आ गया वैल्यू दे रहा हूँ, पावर। हाँ फॉरगेट अबाउट दिस। आप तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल के बताइए। हाँ सर 24। 24। 24। मैक्सिमम कितने प्राइम फैक्टर्स ला पा रहे हो? 4। 4। If this is clear to all, can you apply the same concept to 120 and get me the answer, please? 120 के लिए अप्लाई करेंगे सेम, प्लीज। सॉरी सर 120 के लिए अप्लाई कर देंगे सेम कॉन्सेप्ट एंड आंसर बता देंगे, प्लीज। 120 नंबर ऑफ फैक्टर्स हाँ, the number of factors is 120. ओके How many maximum distinct prime factors can you have? सर Yes, ma'am. इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स पूछ रहा है, तो सर Yes, इसका ma'am. मतलब ये नहीं होगा जैसे इसमें 3 times 2 है, तो जैसे 2 3 लेट्स से 2 3 5 या 7, मतलब ऐसे 4 अलग अलग प्राइम आपको नंबर्स। अग्री विद इट, बट आपको इतना टेक्निकल करने का ही नहीं। आपको क्या मतलब है 2 3 5 7 है या 2 3 5 11 है? आपको ये बताने प्राइम फैक्टर्स है कितने। ओके इसका सर आंसर 5 है क्या? मैक्सिमम 5 हो जाएंगे 5 आ रहा है। सही है, तो चारों 5 आ लास्ट। रहा है। सर 5 सही है। यस मैम। हम्म सर इसमें डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर बोल रहा है, तो ये 2 तो 3 बार आ रहा है, तो वो 2 ही काउंट, मतलब एक ही बार काउंट होगा ना? सर मैंने भी ऐसे ही किया था एग्जाम में, मतलब मेरे को भी यही लगा 2 एक बार ही काउंट होगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? सॉरी, क्या बोल सर रहे हो? ऐसे कह रहे हैं कि 2 into 2 into 2 into 3 को 2 एक बार ही कंसिडर किया, 2 क्योंकि डिस्टिंक्ट पूछा है ना। अभी क्लियर है? सर 4 थोड़ी प्राइम होता है। अभी क्लियर है? हाँ सर सर दी वापस। समझो, मतलब मेरा मोटिव ये है कि मैं 24 प्राइम फैक्टर्स, इस केस में प्राइम फैक्टर, इस केस में नंबर ऑफ फैक्टर्स बता सकते हैं आप मेरे को? 24। 24। 24 प्राइम फैक्टर्स कितने हैं? एबीसीडी चारों प्राइम ही होंगे। हाँ यस। सर। भाई अपन प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में ही तो लिखते हैं हमेशा। हाँ सर समझ गई। क्लियर है ओके सबको? ठीक है ठीक है तो ठीक है, अब मैं समझ जो आ गया। 2 into 2 into 2 into 3 लिख रहा हूँ ना, उसको बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो 2 into 2 into 2 into 3 का मतलब मैं ये वैल्यू 2 और 2 और 2 और 3 नहीं ले रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि 24 को आप ऐसे ब्रेक कर सकते हो कर मैक्सिमम सकते हैं। पार्ट्स में। जैसे मैंने राइट 120 पूछा,
तो 120 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम्म तो ये वैल्यू बनेगा a पावर 1 b पावर 1 c पावर 1 d पावर 2 e पावर 4। तो मैक्सिमम 5 प्राइम फैक्टर्स हो गए, जो यहां से भी मुझे दिख गया था, 1 2 3 4 5। क्लियर है? ओके सर, अब समझ बोलता आ हूँ गया। आप मेरे को 200 का निकाल के बताइए, व्हाट यू विल डू। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू इंटू 5, फाइव ये टू होता है फाइव 200। राइट सर। कितने प्राइम फैक्टर्स आ पाएंगे मैक्सिमम? 5 5। मैं बोलता हूँ 48 का करके बताइए। 48 में क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितने प्राइम फैक्टर्स आ पाएंगे मैक्सिमम? 5 5। समझ में आया अभी कॉन्सेप्ट? यस सर, अब समझ आ गया। Shall I remove this everything on the screen? Yes, sir. यस सर। यस सर। You go to the next one, हाँ सर 11। please. 11th बताने का है किसी को? नो सर। यस सर। यस सर। देखो, कॉमन रूट्स को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो डायरेक्टली। 7x क्यूब से 7x क्यूब कट जाएगा। हाँ यस सर। 9x सर। स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, एक्स x स्क्वायर। स्क्वायर 7x माइनस 16x माइनस 5x माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू प्लस 6। प्लस इससे 6 मेरे दो इक्वल टू रूट्स 0। निकले 2,3। हाँ हम्म अब ये आंसर नहीं है, मेरे को पुट करके देखना पड़ेगा, या तो 2 या फिर 3 इसका कॉमन रूट है या नहीं है। इसमें पुट करो 2, सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ या ना? नहीं कर रहा सेटिस्फाई सर। कर रहा है? नहीं कर रहा। नहीं कॉमन कर रूट रहा। नहीं। 3 पुट करो, इसमें कर रहा है, इसमें कर रहा है, नहीं कर रहा, नहीं। कॉमन रूट निकालने का ये तरीका होता है। ओके डिग्री 4 इक्वेशन आ जाएगी ना, तो भी डिग्री हाँ 4 इक्वेशन को इक्वेट कर ओके। सॉल्व करके जो रूट्स है वो कॉमन रूट हो ऐसा जरूरी नहीं होता है। वो पुट वैल्यू करके पुट देखना करके चेक पड़ेगा। करना जरूरी है। क्लियर है? ठीक है सर। Shall I remove this? यस सर सर। सर। यस सर। Next please. 15। बताने का है किसी को? यस यस सर। यस सर। कल 10 क्वेश्चन बता के आया हूं, वैसे तुम लोग बिल्कुल ही बेशरम हो गया। In a test of 15 questions, a candidate got 1 mark for correct answer, 0 answered, 0 for unanswered, and 30 for sorry, negative mark for 1 for every wrong answer. What are the total number of ways in which a candidate get positive integral value of net score? देखो, x क्वेश्चन सही की x मार्क्स है, यस सर। हाँ y क्वेश्चन नेगेटिव की है, माइनस -0.2 और अनअटेम्प्टेड का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। हाँ। इसको इंटीग्रल बनाना है। x तो हमेशा इंटीग्रल ही है, यस हाँ सर। सर। ठीक है। हाँ। y को क्या रखना पड़ेगा इंटीग्रल बनाने के लिए? मल्टीपल का 4 का मल्टीपल। मल्टीपल 4 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल। y को मिनिमम कितना रख सकता हूँ? 4। 4। और अगर टेस्ट में दे रहा हूँ तो y कितना होगा? 4। अबे 0 होगा ना? क्या सर? टेस्ट में दे रहा हूँ तो y 0 नहीं होगा? हाँ हाँ। हाँ नहीं सर सर, 0 इंटीग्रल होएगा। नहीं बैठेगा। अरे हाँ या ना? यस सर। यस। यस सर। 15 क्वेश्चन थे। हाँ। अगर नेगेटिव एक भी नहीं है तो हाँ पॉजिटिव कितने होंगे? 15। 18। नहीं नहीं सर, अनआंसर्ड भी तो है ना। हाँ। हाँ सर। अभी कंडीशन हटा दो, मैं टेस्ट दे रहा हूँ। अब अटेम्प्टेड कितने होंगे? 15 14 भी तो हो सकता है। सर। अभी फिर तो ऐसे तो अरे सर टेस्ट टेस्ट दे रहे तो सर आंसर तो 15 है। कंडीशन हटा दी ना, मैं टेस्ट दे रहा हूँ। अच्छा ओके। तो अभी इसमें आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं? 14। 15। ओ ठीक है। सॉरी 4। आपको पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, कितनी डिफरेंट वैल्यूज है वो नहीं मैटर करता। तो इसके कितने सोल्यूशंस होंगे? 15। 15। 15 x को भी सोल्यूशन। 0 नहीं पुट कर सकता कि 0 अटेम्प्ट? हाँ। हाँ हाँ हाँ। नहीं, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए मैम। 0 आ जाएगा अच्छा। अगर आपने 0 करेक्ट, 0 रॉन्ग, 0 अनआंसर्ड किया। हम्म। देखा करो कई अच्छा बार, ओके ओके 3 ओके। मिनट में जिनका सबमिशन होता है उनका 0 अटेम्प्ट, 0 करेक्ट, 0 रॉन्ग होता है, तो 0 मार्क्स आता है। ओके सर।
y को नेक्स्ट क्या रख सकता हूँ? 4 4 कितने करेक्ट अटेम्प्ट बचे आपके पास? 11 11 क्यों अनअटेम्प्टेड भी तो हो सकते हैं। हाँ, सर पर अपन 11 कर नहीं सकते ना। क्यों नहीं कर सकते मैम? नहीं नहीं, रुको रुको, कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, सॉरी मैं हो बोल रही हूँ सकता है 1 नहीं आपके कर 11 सकते। करेक्ट अटेम्प्ट हो, हाँ हो सर, वो मेरे सकता को है बोला आपके था 1 10 नहीं कर। करेक्ट अटेम्प्ट हो, हाँ 9 करेक्ट, 8 करेक्ट, कर सकता हूँ। यस यस सर। कितने सोल्यूशन जनरेट होंगे? सर 10। 10 क्यों 11 नहीं होंगे? सर, हाँ 1 11 नहीं होगी। रख सकते, उस पे 0 हो जाएगा। 1 रखते ही 0 हो जाएगा, समझ में आया? अगर 1 करेक्ट और 4 रॉन्ग हुए तो मार्क्स 0 हो गए। यस सर। तो 10 अटेम्प्ट। y को नेक्स्ट क्या रखूंगा? 8। 8 8 कितने क्वेश्चन बचे? 7 कहां से कहां तक 7 जा सकता हूँ? 7 अटेम्प्ट कर सकता हूँ, करेक्ट? हाँ 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 5 कर 4 सकते। हाँ 3 हाँ 2 हाँ नहीं नो सर। नहीं 3 4 5 6 7 5 केस हो गए। यस सर। y इक्वल टू 12। कितने हाँ क्वेश्चन बचे? 3 और तीनों पॉजिटिव किए तो मार्क्स कितने आए? 3 फिर मैम 0 नेट हो गया। 0 हो नेट गया ना? जी 0। वाला कंसिडर नहीं कर सकते, 0 हो मतलब जाएगा। इसका हाँ एक भी केस नहीं है। टोटल कितने केस हो गए आपके पास? 30 30। तो ये है 0 क्यों किया। भाई, 12 नेगेटिव यानी 3 नंबर कट गए, 3 पॉजिटिव यानी 3 आ गए, नेट स्कोर 0 हो गया। पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू चाहिए आपको। समझ गया। शैल आई गो अहेड नेक्स्ट? 18। क्लियर है नहीं सबका? हाँ सर। शैल आई रिमूव यस दिस? सर। यस सर। यस सर। लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट वन प्लीज। 18 18 हाँ। बताने का किसी को? यस सर। How many numbers less than 10,000 have sum of digit equal to 7? लेस देन 10,000 में कौन कौन से डिजिट्स कंसीडर करूंगा? सो 2 3 4 The 1 digit, 1 2 3 digit, 4। 3 digit 1 2 हाँ। 3 4। हम्म ठीक है, चलो पहले 1 डिजिट के काउंट कर लूं। हाँ 1 पहले 4 से चालू करता हूँ, 4 की इच्छा होगी, बोलिए। 7 कैसे ला सकते हो? 7 रख के 7 एक वे 7 में 0 0 0 या फिर 6 1 0 0 6 1 6 0 1 0 या 0 फिर 5 5 2 2 0 0 5 2 0 0 5 5 1 1 1 0। 1 0 5 1 1 0 1 सॉरी। 1 हाँ। ठीक है, या फिर 4 3 4 3 0 0 4 4 1 2 4 2 2 1 0। 0 0 2 1 0 4 1 1 1 या फिर सर 4 2 1 1 कैसे होगा? अच्छा सॉरी 4 2 1 0 हाँ। या फिर 4 ट्रिपल 1 या फिर 3 3 से 3 3 4 4, वो तो सर 0 सेम 0 हो गया। 3 4 तो होगा नहीं। हाँ 3 3 1 0 1 1 0 0। 3 2 1 0 3 2 2 0 हाँ हाँ 3 2 1 1 हाँ और कुछ 2 नहीं। 2 2 अच्छा 1 यस सर, और कुछ बस यही है। यही होंगे। हाँ जी हाँ इनका शफलिंग देखते हैं। 4 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, हाँ यस सर 4 दिस इज 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 बराबर 2 4 अपॉन 2 4 फैक्टोरियल 4 अपॉन 3 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 4 अपॉन 2 2 4/3 3 4 अपॉन 3 करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 10 12 इंटू 10 120। यस सर। अरे क्या यस तो मैडम? इसमें 7 ट्रिपल 0 में 0 को आगे रख सकता हूँ क्या? सर सारे डिजिट इंक्लूड हो गए ना, पर बराबर, 1 वाली मेरी बन नीड जाएगी। खत्म हो गई 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट कैलकुलेट करने की। समझ में आया सबको? यस यस सर If I'm shuffling it like this, I'm getting 2 digit number. If I'm shuffling it like this, I'm getting a single digit number. मेरे को जो इंडिविजुअली करना था वो नीड ही खत्म हो गई अब। क्लियर है? इसलिए मैंने 4 डिजिट से स्टार्ट किया था। क्लियर टू ऑल? यस सर। Yes, sir. Shall we go ahead?
एक यस क्वेश्चन सर यस यस मैम सर प्लीज। सर, ये जो सोल्यूशन इन्होंने दिया हुआ है, इन्होंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाया क्या? मैम आई एम नॉट श्योर, मैंने देखा नहीं है, मैं एक बार देख लेता हूँ इनका सोल्यूशन क्या है। हाँ जी। यस, हाँ डिस्ट्रीब्यूशन लगा सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की कोई दिक्कत नहीं। ओके सर। Shall I remove this? यस सर। यस सर। Next please, 90 19। बताने का किसी को? नो सर No, sir. नहीं, यस anyone? सर। Mod x minus 3 mod y plus 4 equal to 12। Now you just need to identify 12 कैसे ला सकते हो? 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4। और कोई तरीका है क्या? नहीं सर। अरे है मैम, 4 into 3, 6 into 2, 12 into 1, ये भी तो होगा। इस हाँ ब्रैकेट की वैल्यू 1 रखूं या 12 रखूं, सेम केस थोड़ी है। हाँ Accordingly, you have to satisfy the condition mod x minus 3 equal to 1। mod सर x का वैल्यू है, सर इसको ऐसे करके नहीं कर सकते जैसे ना, मतलब केस बना लिए x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 और फिर नहीं कर x सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्यों सर? मैडम। इक्वेशन दो वेरिएबल में है और वो भी मल्टीप्लाई में है। आप एक्स वाई को ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 लेके तो करते ही रहोगे। टू वेरिएबल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे आप? जब इसको चलो ग्रेटर देन 0 ले लिया तो प्रोडक्ट आएगा एक्स वाई प्लस 4x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे दो वेरिएबल को एक इक्वेशन के साथ? यहाँ पे दो वेरिएबल प्रोडक्ट में है। सर मतलब जैसे आपने ये लिखे ना फैक्टर्स ऐसे लिख के, और सब फिर इनके मतलब जैसे आप वैल्यू पुट करना भी, जैसे आपने x माइनस 3 इक्वल्स टू 1 किया, तो हाँ, फिर इसमें अगर मैंने सपोज अज्यूम कर लिया कि x ग्रेटर देन 0 है, तो सब ग्रेटर देन 0 आया तब ये ले लेंगे, और अगर लेस देन 0 आया मतलब कॉन्ट्रडिक्ट करे कंडीशन को, तो ये केस समझो हटा बात देंगे। को, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो तब आता जब mod ऑफ x प्लस 5 दे रखा होता, mod ऑफ x प्लस 3 दे रखा होता। नाउ द डिपेंडेंसी इज ऑन द वैल्यू ऑफ x, कि वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। समझे? हाँ इसमें तो डिपेंडेंसी है ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेटर टू गो विद एन अप्रोच लाइक दिस। इज दैट क्लियर? शैल वी गो अहेड? सर यस यस मैम। सर क्लास 11 बजे ही होगी क्या? कोशिश करता हूँ 11:15 करूँ। थैंक यू सर, मैं तो नहाई भी नहीं क्योंकि अभी। कोशिश करते हैं। शैल आई रिमूव दिस? अबे अभी मीटिंग Yes, से sir. रिमूव कर दूंगा, तुम लोगों को जवाब दे दिया करो। यस हाँ सर। सर यस मैम। तो वो 10 कैसे आया? उसमें तो अपने 6 ही निकाले थे। अरे मैडम केसेस निकाल निकाल के देखेंगे ना। When I'm अच्छा, saying फिर mod पुट x भी equal करके to देखे अपन। mod x minus 1 equal to 3, mod x equal to 4, तो x 4 भी हो सकता है, माइनस 4 हम्म। भी हो सकता है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन सारी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेंगी, कुछ कॉमन वैल्यूज आ रही होंगी तो वो कैंसिल आउट हो जाएगी आगे जाके। कैंसिल हो जाएगी, मतलब अपन को सब पुट करके ही देखना पड़ेगा। हाँ, सर ये अटेम्प्ट करने वाला क्वेश्चन था क्या या फिर छोड़ने मैंने वाला? छुड़वाया है मैम, क्लियरली छुड़वाया है। ठीक है सर। ट्रस्ट मी, मेरा जो सिलेक्शन है आप उसको मान के चलिए कि आप लोगों के लिए बहुत एप्ट है। नन ऑफ यू इज अटेम्प्टिंग मोर देन 10 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। और मेरा सेक्शन 1 उठा के देखिए आज के में कितना काउंट है, कोई बताएगा प्लीज? सेक्शन 1 में कितना काउंट लिखवाया मैंने? सर 11। 11। और उस 11 में से मेरे हिसाब से 3 या 4 क्वेश्चन तो आप लोगों ने पूछे भी नहीं। मतलब वो तो इतने इजी थे कि आप लोग कर भी आए। तो केवल उन 11 क्वेश्चन पे भी फोकस करके आप एक बहुत अच्छा स्कोर जनरेट कर सकते हैं। गेटिंग इट? 11 करेक्ट मतलब 33 होता है, किसी का भी नहीं आया ना। और सर ये आपने बोला भी मैम योर वॉइस इज ब्रेकिंग, सॉरी ऐसे सॉरी सॉरी अवॉइड करने जिसमें पेयर्स पूछना। सॉरी। सर अब आ रही है? यस मैम, नाउ इट्स अब आ रही है अच्छे से? यस यस। मैं ऐसे कह रही हूँ, आपने बोला भी था ना कि ऐसे को अवॉइड करना ये वाले मेरा क्लियर क्वेश्चंस है ना। को। देखो आप समझ नहीं रहे हो यार, मैं 10 पेड़ निकाल के भी मैं श्योरिटी से आंसर लिख ही नहीं पाऊंगा इसका तो। क्योंकि टीटा क्वेश्चन है पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है मैंने कुछ मिस किया। नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशंस मेरे हिसाब से करने वाला क्वेश्चन होता ही नहीं।
हाँ सर, अभी अपन ने वो मार्क्स वाला किया था ना, हाँ, उसमें भी यही था। उसमें सारी वैल्यूज ना 30 के आसपास दी हुई थी, और मैंने भी कर। बहुत क्लोज है। हम्म। तो आप सिलेक्शन को देखिए ना, ये सब पार्ट 2 में आ रहे हैं, पार्ट 1 में कुछ भी नहीं आ रहा है इनमें से। हाँ सर। हाँ। एक बात को समझिए, नॉलेज होना और मार्क्स लाना ये दो अलग अलग चीजें होती हैं। Not every single student having the knowledge will get marks, and not every single student is scoring good enough is having enough knowledge for that. ये अलग अलग बातें हैं। नॉलेज के बेसिस पे अपन हर क्वेश्चन को उठा सकते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन को उठाएंगे तो मार्क्स नहीं आएंगे। मैं 100 बार समझा चुका हूँ, कैट इट्स मोर अबाउट सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन, इट इज नेवर अबाउट अटेम्प्ट ऑफ क्वेश्चन। आपका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप में से किसको लगता है कि इस टेस्ट में 6 सही नहीं हो सकते थे, लेकिन 18 नंबर नहीं आए ना? सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू फोकस ऑन। मैं क्वेश्चन जो सेकंड पार्ट में वो भी सॉल्व इसलिए कराता हूँ ताकि आपको उस चीज का नॉलेज हो, लेकिन मेरा मोटिव कभी भी ये नहीं रहता कि मैं आपको इतना सिखा दूं कि आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग जाए। नहीं करने का। until unless you are up to the level कि यार सर 14 अटेम्प्ट तो कर ही रहा हूँ, अब ऑल स्कोर कैसे बढ़ाऊं? 42 तो कंटिन्यूअसली आ रहा है, 40 प्लस तो आ ही रहा है कंसिस्टेंटली मैथ्स में। गेटिंग इट? वो डिफरेंस है। नेक्स्ट प्लीज। यस सर। 20. 20 बताने का है? नो Yes, सर। sir. ये करने वाला क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। लॉग है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। लेट्स फिगर इट आउट। बट अगेन नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लूंगा। लॉग एक्स बेस ए, लॉग एक्स बेस ए को क्या लिख दूं? Log सर x Log upon by log a. log x by A. log लॉग a, एक्स बेस बी को? Log Log x. X by log log B. x by log लॉग b, बी बेस ए को? Log B by Log log b A. by log log b a. by log a, इससे लॉग ए से लॉग ए काट दोगे? कट हाँ. के। हाँ लॉग एक्स का होल यस स्क्वायर सर। हाँ Log इक्वल B का टू whole square. लॉग log b का होल B. स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर काट दो क्या? यस सर। नहीं हाँ काट सकते हैं। नहीं काट सकते ना सर. Even लॉग taking एक्स under इक्वल root टू both sides. प्लस माइनस हाँ लॉग बी। सॉरी। अच्छा ओके ओके ओके. यस सर। एक्स इक्वल टू, अब लॉग एक्स इक्वल टू लॉग बी, या फिर log x इक्वल टू माइनस लॉग बी, माइनस और b log माइनस b। लॉग बी को b की पावर -1 ऐसे लिख दूं क्या मैम? हम्म. x इक्वल टू b, x इक्वल टू 1 X अपॉन equals to 1 by B. 1 by b. दो सोल्यूशन है। ये क्वेश्चन फिर भी अप टू लिमिट करने वाला था क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन हाँ क्लियर है। यस सर। तो ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? शैल वी गो अहेड विद द नेक्स्ट वन? yes sir. यस सर। शैल आई रिमूव द सॉल्यूशन? यस Yes. सर। नेक्स्ट प्लीज। 5. क्वेश्चन नंबर 5 बताने का है किसी को? No नो sir. सर। Yes, No sir. sir. यस बोला किसी ने, तो किसी को पूछना है? No sir. क्या बात कर रहे हो? No, sir. चलो ठीक है, छोड़ देते। नेक्स्ट 10th. बताने का है किसी को? No, Yes, sir. sir. फिर यस बोला। किसी ने यस बोला है क्या यार? मेरे को कंफ्यूजन हो सर आगम। रहा। आगम यस बोला है? सर Anupam. मैंने नहीं बोला Anupam. है, अनुपम भैया ने बोला है यार। चारू तुम सर मैंने बोला सर। हाँ अनुपम अच्छा बताना ओके है। सॉरी सॉरी। अनुपम बताना है। हाँ सर। हाँ। इन फ्रंट ऑफ अ 60 मीटर वॉल अ ट्रायंगुलर प्लॉट इज टू बी। सर ज्योमेट्री अभी छोड़ दें क्या? पढ़ाऊंगा उसके बाद पढ़ लेना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट प्लीज। 14. बट चारों इट वाज रॉन्ग, आप आगम का नाम ले लो। सॉरी सर आई अपोलोजाइज। सॉरी टू आगम सॉरी मैम, मेरे को क्या सॉरी पता? आगम। सॉरी। कोई मैं बात बोल, नहीं, कोई बात नहीं। हाँ मैं ये बोल रहा था यार, ऐसे कोई बात नहीं बोल के छोड़ देने का। नेक्स्ट प्लीज। No sir. एनीवन? नो सर। नो No, सर। sir. चारों हो गया ना तुम्हारा? यस सर। ठीक है। और किसी को पता करने का है? No sir. चलो लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट प्लीज। खत्म. क्या बात कर रहे हो? हाँ sure. Okay, fine. So finally, with this, we are done with the discussion of MOP CAT H2 FLT 11.6.